सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा हाउ टू राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। आज इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे हाउ टू यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स। आइए सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखते हैं। बच्चों, दीज आर वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आइए इसको एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। यहाँ पर आप देखिए a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर a इज बेस, m इज एक्सपोनेंट इसमें, एंड इसमें a इज बेस एंड n इज एक्सपोनेंट। व्हेन वी हैव लाइक बेसिस means similar bases, when bases are same the exponents gets added. So for any non-zero integer a and for any whole numbers m and n, a raised to the power m multiplied by a raised to the power n equals a raised to the power m plus n. इसकी एप्लीकेशन हम आगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में सीखेंगे। पार्ट बी में आप देखिए दिस इज a raised to the power m divided by a raised to the power n. This equals a raised to the power m minus n when m is greater than n. अगर m greater than n है for any non-zero integer a and whole numbers m and n. When mn is greater than n, then a raised to the power m divided by a raised to the power n. दो integers जिनके bases same हैं और exponents अलग अलग हैं उनको divide करते हैं, तब हम इस रूल को यूज करते हैं। a raised to the power m divide by a raised to the power n, this equals a raised to the power m minus n. इसी तरीके से थर्ड रूल है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। यहाँ पर एक रियल नंबर है a जिसकी पावर है m और उसकी भी अगर हमें पावर लेनी हो, पावर ऑफ अ पावर, then the powers gets multiplied. Suppose we have a exponent, a is base and m is the exponent. And if we need to multiply it n times, इसको n times multiply करना होगा, then this will be equivalent of a raised to the power m multiplied by n. Exponents directly multiply हो जाती हैं। इसी तरीके से पार्ट डी में आप देखिए यहाँ पर बेसिस अलग अलग हैं। This is a, this is b, but exponents are same. Here it is m, here also it is m. When bases are same but exponents are different, it means when multiplying powers with same exponent, multiply the bases and keep the exponent same. So I hope this rule is clear. यहाँ पर दोनों bases a and b उसको हमने multiply किया है और exponent m same है। a raised to the power m multiplied by b raised to the power m, जो bases हैं ये आपस में multiply हो जाएंगे। This equals a multiplied by b whole raised to the power m. I hope this rule is also clear. Next rule is called dividing powers with the same exponent. So यहाँ पर आप देखिए a raised to the power m divide by b raised to the power m. यहाँ पर भी bases अलग अलग हैं but exponent same है। When exponent is same, basis gets divided by. So this equals a divided by b whole raised to the power m. Now let's understand rule number f. Here you can see we have base a raised to the power 0. Any number except 0 raised to the power 0 is 1. So any number whose exponent is 0, this is equivalent to 1. So a raised to the power 0 equals 1. Similarly, rule number g, minus 1 raised to the power even number is equal to 1. So कोई भी इंटीजर, इवन इंटीजर, सपोज -1 है, रेज टू द पावर 2 अगर हम लिखते हैं, देन दिस इज इक्वल टू 1. -1 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1. -1 रेज टू द पावर 3. नाउ यू कैन सी द एक्सपोनेंट इज एन ऑड नंबर. व्हेन एक्सपोनेंट इज एन ऑड नंबर, देन -1 रेज टू द पावर दैट नंबर, ऑड नंबर, दिस इक्वल्स -1. सो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। -1 की अगर इवन पावर है, इवन एक्सपोनेंट है, तो रिजल्ट 1 होगा, और -1 की अगर ऑड नंबर पावर है, मीन्स उसका एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर है, तो रिजल्ट -1 के इक्वल आएगा। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं और इसको अच्छे से सीखते हैं। एक्सरसाइज 13.2
Question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. So, part 1, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 8. आइए इसको करते हैं. इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. हमने पहला रूल सीखा था, इफ a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n, अगर बेसिस सेम होते हैं और एक्सपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, देन दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. सो सेम बेस रहेगा, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. सो 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 4, दिस इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2. 4 प्लस 2 इज 6. सो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. 3 रेज टू द पावर 8 और भी है, सो 3 रेज टू द पावर 8 लिख लेंगे. दिस इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 8. इसमें दोबारा से हम सेम रूल यूज करेंगे, रूल नंबर 1. सो बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड. 6 प्लस 8, सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 14. आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. यहाँ पर आप देखिए बेस है 6, एक्सपोनेंट इज 15 एंड इन दिस बेस इज 6, एक्सपोनेंट इज 10 और बीच में डिवाइड का साइन है. सो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड रूल यूज होगा, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n. दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. विल यूज दिस एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. So the expression equals 6 raised to the power 15 minus 10. बेस वही रहा, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So this equals 6 raised to the power 5. आई होप बच्चों ये क्लियर है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3. a raised to the power 3 multiplied by a raised to the power 2. इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा. So we will write using a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. This equals a raised to the power n plus n. So this equals part 3. The solution will be a raised to the power 3 plus 2. This is equal to a raised to the power 5. Similarly, let's do part 4. 7 raised to the power x multiplied by 7 raised to the power 2. In this also we will use the same rule. We will write the rule here using a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. This is equal to a raised to the power m plus n. So 7 raised to the power x multiplied by 7 raised to the power 2. This equals 7 raised to the power x plus 2. I hope बच्चों ये भी क्लियर है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5. 5 raised to the power 2 whole raised to the power 3 डिवाइड by 5 raised to the power 3. बच्चों सबसे पहली टर्म जो है 5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3, इसमें हम लॉ यूज करेंगे. वी नो डैट a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n. दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n. सो सबसे पहले हम यही रूल यूज करेंगे, 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3. दिस इज द क्वेश्चन. दिस विल बी इक्वल टू a raised to the power m multiplied by n लिखेंगे. So this will be 5 raised to the power 2 multiplied by 3 और डिवाइड में है 5 raised to the power 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. This equals 5 raised to the power 6 डिवाइड by 5 raised to the power 3. यहाँ पर दोबारा से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. This will be equal to 5 raised to the power 6 minus 3. लॉ हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं, बिकॉज a raised to the power m divide by a raised to the power n. This is equal to a raised to the power m minus n. अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे. 5 raised to the power 6 minus 3. This equals 5 raised to the power 3. आई होप बच्चों ये क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 6. 2 raised to the power 5 multiplied by 5 raised to the power 5. बच्चों इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा. हमने सीखा था a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द पावर m. यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस अलग अलग हैं. दिस इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेज टू द पावर m. सो सेम रूल यूज करेंगे इसमें. 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 5.
दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, बेसिस मल्टीप्लाई हो गए एंड एक्सपोनेंट विल रिमेन सेम, यहाँ पर 5 आ जाएगा. सो दिस इक्वल्स 10 रेज टू द पावर 5. आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 7. a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द पावर 4. बच्चों इसमें भी सेम रूल यूज होगा. हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द पावर m. दिस इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेज टू द पावर m. इसको यूज करेंगे. दिस इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाई b होल रेज टू द पावर 4 and this can be written as ab raised to the power 4. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 8. 3 raised to the power 4 whole raised to the power 3. इसमें भी रूल यूज होगा. वी विल यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. रूल लिख लेते हैं यूजिंग a raised to the power m whole raised to the power n. यहाँ पर एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दिस विल बी a raised to the power mn. So 3 raised to the power 4 whole raised to the power 3. This equals 3 raised to the power 4 multiplied by 3 and this equals 3 raised to the power 12. I hope बच्चों ये भी क्लियर है. नेक्स्ट करते हैं 9th पार्ट. 2 raised to the power 20 divide by 2 raised to the power 15 multiplied by 2 raised to the power 3. इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे. We will use the rule a raised to the power m divide by a raised to the power n. This equals a raised to the power m minus n. इसको यूज करेंगे. This equals 2 raised to the power 20 minus 15. ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है. Now we need to multiply this by 2 raised to the power 3. This equals 2 raised to the power 5 multiplied by 2 raised to the power 3. यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. वी विल यूज, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख लेते हैं बिकॉज सिंस a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n, दिस इक्वल्स a रेज टू द पावर m प्लस n. दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3 and 5 plus 3 is 8. So this equals 2 raised to the power 8. I hope this is also clear. नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 10. 8 रेज टू द पावर t डिवाइड बाई 8 रेज टू द पावर 2. इसमें भी बच्चों हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. वी विल यूज a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n. यहाँ पर भी बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं. सो इसको डिवाइड करेंगे. वी विल यूज a रेज टू द पावर m माइनस n. दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी आर यूजिंग. सो राइट यूजिंग a raised to the power m divided by a raised to the power n equals a raised to the power m minus n. So 8 raised to the power t divided by 8 raised to the power 2. This equals 8 raised to the power t minus 2. I hope this part is also clear. Next question करते हैं. Question number 2. Simplify and express each of the following in exponential form. बच्चों इसमें भी हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. आइए करते हैं. सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे. दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 32. यहाँ पर 32 के फैक्टर्स बनाकर लिखेंगे. इस तरीके से हम फैक्टर्स बनाते हैं. दिस इज 32. 2 की टेबल में जाता है 2 16 जा. अगेन 2, दिस विल गो 8 टाइम्स. अगेन 2, दिस विल गो 4 टाइम्स. अगेन 2, दिस विल गो 2 टाइम्स. देन अगेन 2, इट विल गो 1 टाइम. सो 32 के फैक्टर्स होंगे. 32 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 5. सो यहाँ पर 32 की प्लेस में हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5. अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे. 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 देन 3 रेज टू द पावर 4. इसको मैंने रीअरेंज किया है. इसी तरीके से इसमें डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर 5 को मैं पहले लिख रही हूँ और 3 को बाद में. अब सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले इन दोनों में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. यहाँ पर पावर अलग अलग है बट बेसिस सेम है. सो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी. This equals 2 raised to the power 3 plus 2 multiplied by
3 raised to the power 4 divide by 2 raised to the power 5 multiplied by 3. So this equals 2 raised to the power 5 divide by 2 raised to the power 5 multiplied by 3 raised to the power 4 divide by 3. अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर पावर भी सेम है और बेसिस भी सेम है. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. अदरवाइज वी कैन राइट दिस एज दिस इक्वल्स 2 raised to the power 5 minus 5. डिवीजन में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. इसी तरीके से दिस विल बी 3 raised to the power 4 minus 3 raised to the power 1, क्योंकि यहाँ पर 3 raised to the power 1 एंड 3 raised to the power 4 ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं. बेसिस सेम है बट एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं. सो दिस विल बी 3 raised to the power 4 minus 1. Now this equals 2 raised to the power 0 multiplied by 3 raised to the power 3. 2 raised to the power 0 is 1 and 3 raised to the power 3 से जब वो मल्टीप्लाई होगा this equals 3 raised to the power 3. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 2. 5 raised to the power 2 whole raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 7. इसको भी बच्चों हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ कर कर सिंप्लीफाई करना है. आइए इसको करते हैं. सबसे पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं. न्यूमरेटर में है 5 raised to the power 2 होल raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 7. सबसे पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे. 5 raised to the power 2 होल raised to the power 3. इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे. बेस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दिस विल बी 2 multiplied by 3 multiplied by 5 raised to the power 4 divided by 5 raised to the power 7. This equals 5 raised to the power 6 multiplied by 5 raised to the power 4 divided by 5 raised to the power 7. न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे. बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं. सो बेस विल अगेन रिमेन सेम एंड एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड. ये ऐड हो जाएंगे. दिस विल बी 6 + 4 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 7. न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 raised to the power 10 डिवाइड बाई 5 raised to the power 7. अब यहाँ पर बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं एंड दीज आर डिवाइडिंग. सो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बेस सेम रहेगा 5, पावर विल बी 10 - 7. 10 - 7 करेंगे. दिस इक्वल्स 5 raised to the power 3. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3. 25 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 3. बच्चों 25 प्राइम फैक्टर नहीं है. सो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे. 25 इज़ 5 स्क्वायर. सो यहाँ पर लिखेंगे 5 स्क्वायर. इसका एक्सपोनेंट है 4 और इसको डिवाइड करना है 5 raised to the power 3 से. सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर में आएगा 5 raised to the power 2 multiplied by 4 डिवाइड बाई 5 raised to the power 3. 2 multiplied by 4 करेंगे. दिस विल बी 5 raised to the power 8 डिवाइडेड बाई 5 raised to the power 3. अब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. बेस सेम रहेगा. दिस विल बी 8 - 3. जब डिवाइड करते हैं बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सो दिस इक्वल्स 5 raised to the power 5. दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4. 3 multiplied by 7 raised to the power 2 multiplied by 11 raised to the power 8 divided by 21 multiplied by 11 raised to the power 3. आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सही तरीके से लिखते हैं इसको. दिस इक्वल्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 3 multiplied by 7 raised to the power 2 multiplied by 11 raised to the power 8 divided by 21 multiplied by 11 raised to the power 3. यहाँ पर 21 जो है, दिस 21 इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे. दिस इक्वल्स 3 multiplied by 7 square multiplied by 11 raised to the power 8 divided by 21 can be written as 3 multiplied by 7. Then we have 11 raised to the power 3. यहाँ पर 3 and 3 ये कैंसिल हो जाएगा. Now we have 7 raised to the power 2 divided by 7. Then 11 raised to the power 8 divided by 11 raised to the power 3. इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे. दिस इक्वल्स 7 raised to the power
2 माइनस 1, यहाँ पर 1 पावर है, कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 यूज़ करते हैं। इसी तरीके से 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वल्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 रेज टू द पावर 5। आई होप बच्चों ये भी समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5, 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर लिखते हैं दिस इज 3 रेज टू द पावर 7 and in denominator we have 3 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 3। सबसे पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, सो दिस इक्वल्स न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं 3 raised to the power 7, डिनोमिनेटर में बेस सेम रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस इक्वल्स 4 + 3, सो वी हैव 3 raised to the power 7 डिवाइड बाई 3 raised to the power 7। अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बेस 3 रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 इज 0, सो दिस इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 0 एंड एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, सो दिस इक्वल्स 1। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0। बच्चों यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 0 है, any number raised to the power 0 is 1, so this equals 1. Similarly 3 raised to the power 0, this is also 1, and 4 raised to the power 0, this is also 1, और ये सभी आपस में ऐड हो जाएंगे, so this equals 3। I hope this is also clear। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7, 7th पार्ट में भी हमारे पास 2 raised to the power 0 है, any number raised to the power 0 is 1, so यहाँ पर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 0, ये भी 1 है, सो 1 आ जाएगा, एंड 4 रेज टू द पावर 0, ये भी 1 है, सो दीज वंस विल गेट मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट 1 ओनली, सो आंसर फॉर पार्ट 7 इज 1। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 8, बच्चों यहाँ पर भी 3 रेज टू द पावर 0 है, जैसा कि मैंने बताया था एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 2 रेज टू द पावर 0, यहाँ पर भी 1 आएगा, ये एक ब्रैकेट में है, एंड बाहर है 5 रेज टू द पावर 0, ये भी 1 के इक्वल होगा, सो दिस इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, सो इसमें भी 2 आएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 9, 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, this equals 2 raised to the power 8 multiplied by a raised to the power 5 divided by, यहाँ पर हमारे पास है 4 raised to the power 3 multiplied by a raised to the power 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, this equals 2 raised to the power 8 multiplied by a raised to the power 5, 4 को हम लिखेंगे 2 square, so this equals 2 square raised to the power 3 multiplied by a raised to the power 3। डिनोमिनेटर में ही सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 5, न्यूमरेटर एज इट इज लिखा है। अब डिनोमिनेटर में बेस है 2, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई, दिस इज एक्सपोनेंट टू द पावर एक्सपोनेंट रूल, सो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 5, दिस इज न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर, दिस इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6, क्योंकि बेसिस सेम है, डिवीजन रूल यूज करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली इसमें भी बेसिस सेम है, सो एक्सपोनेंट्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, 5 माइनस 3 आ जाएगा, सो दिस इक्वल्स 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6 करेंगे, दिस इज 2, सो 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड a रेज टू द पावर 2, सो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 2। अब इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, पावर सेम है, बेसिस अलग अलग हैं, सो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड पावर विल बी 2 ओनली, सो दिस इक्वल्स 2a रेज टू द पावर 2। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 10, a रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
हमारे पास है a raised to the power 5 upon a raised to the power 3. This is in one bracket multiplied by a raised to the power 8. So ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इक्वल्स a raised to the power 5 minus 3. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है. देन दिस इज मल्टीप्लाइड बाई a raised to the power 8. So this equals a raised to the power 5 minus 3 is 2. So यहाँ पर 2 आ जाएगा. मल्टीप्लाइड बाई a raised to the power 8. अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे. बेसिस सेम है सो पावर्स विल गेट एडेड. दिस इक्वल्स a raised to the power 2 plus 8. I hope this is also clear. 2 plus 8 is 10. This equals a raised to the power 10. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 11. 4 raised to the power 5 multiplied by a raised to the power 8 b cube divided by 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई a raised to the power 5 b square. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सही तरीके से लिखते हैं. 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई a power 8 b power 3 डिवाइडेड बाई 4 raised to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई a power 5 b power 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 4 power 5 एंड 4 power 5 दोनों सेम पावर्स हैं, ये कट जाएंगी और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 raised to the power 5 minus 5. सिमिलरली a की एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. दिस विल बी a पावर 8 minus 5 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर्स भी सब्ट्रैक्ट होंगी. दिस विल बी b minus 2. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 4 raised to the power 0 मल्टीप्लाइड बाई a raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई b raised to the power 1. 4 raised to the power 0, this is 1 only. So this equals a raised to the power 3 multiplied by b. I hope this is also clear. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 12. 2 raised to the power 3 multiplied by 2 raised to the power 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इक्वल्स 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 1 होल पावर 2. ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे. बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं एंड दीज आर मल्टीप्लाइंग. सो दिस इक्वल्स 2 raised to the power 3 plus 1. पावर्स ऐड हो गई. होल पावर 2. Now this equals 2 raised to the power 4 whole raised to the power 2. अब एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दिस इक्वल्स 2 raised to the power 4 multiplied by 2 and this equals 2 raised to the power 8. आई होप बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करना अब आपको समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू ऑल.